सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 समरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो तनिष्का, आर यू रेडी? Yes, I'm ready. ओके, तो आज हम फ्लैमिंगो की बुक की बात कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 8 है और लेसन का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। The children of an elementary school classroom in a slum look pathetic and miserable. They have pale and lifeless faces. Their disorderly hair are torn around and look like ruthless weeds. They are depressed and keep their heads down. They have stunted growth. They inherit the disease of their parents. They do have dreams. A sweet young boy is sitting annotated at the back of his dim classroom. He is dreaming of squirrels game in the trees and of other interesting places other than his dull and drab classroom. झुग्गी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा के बच्चे दयनीय और दुखी दिखते हैं। उनके चेहरे पीले और बेजान हैं। उनके अस्त व्यस्त बाल इधर उधर फटे हुए हैं और जड़हीन घास फूस की तरह दिखते हैं। वे उदास हैं और अपना सिर झुकाए रहते हैं। उनका विकास अवरुद्ध हो गया है। उन्हें अपने माता-पिता की बीमारियां विरासत में मिलती हैं। उनके सपने तो हैं, एक प्यारा युवक लड़का अपनी धुंधली कक्षा के पीछे चुपचाप बैठा है। वे अपनी नीरस कक्षा के अलावा पेड़ों और गिलहरी के खेल और अन्य दिलचस्प जगहों का सपना देख रहा है। The gifts given as donations and the picture of the Shakespeare's head are hung on the unpleasant creamy walls, but these are useless to these unfortunate children. In the early morning, the sky is cloudless. Domes of the institutions of the civilized world shine in every city. So are they in Tyrol Valley. Music of bells and fragrance of flowers pervade there. The map of this world is made and reshaped by the people in power. दान के रूप में दिए गए उपहार और शेक्सपियर के सिर की तस्वीर अप्रिय मलाईदार दीवारों पर टंगी हुई है। लेकिन इन अभागे बच्चों के लिए ये सब बेकार है। सुबह के समय आसमान बादल रहित होता है। सभ्य दुनिया की संस्थाओं के गुंबद पर शहर में चमकते हैं। टायरोल घाटी में भी वैसे ही है। वह घाटियां का संगीत और फूलों की खुशबू व्याप्त है। इस दुनिया का नक्शा सत्ता में बैठे लोगों द्वारा बनाया और नया आकार दिया जाता है। But for these children of a school in the slum, that world is meaningless. Their own windows are dirty. Unpleasant surroundings from unpleasant surroundings form their world. The fog of uncertainty dominates their future. They are doomed to live in narrow streets closed in by the bluish gray sky. Their world is far away from rivers, caps, and stars. लेकिन झुग्गी बस्ती के स्कूल के इन बच्चों के लिए वह दुनिया बेमानी है। उनकी अपनी खिड़कियां गंदी हैं। अप्रिय परिवेश ही उनकी दुनिया बनाता है। अनिश्चितता का कोहरा उनके भविष्य पर हावी है। वे नीले भूरे आकाश से बंद संकरी मीन्स जो कि बहुत छोटी छोटी गलियां बस्तियां होती हैं, गलियों में रहने के लिए अभिशप्त है। उनकी दुनिया नदियों, पर्वतमालाओं और सितारों से बहुत दूर है। Shakespeare's holds no interest for them, nor the map of the world does them any good. This map shows a world which is not theirs. This world is full of attractions. There are beautiful ships, warmth of the sun, and love. They entice these children. These children. They are tempted to steal them away by running away from their miserable surroundings. शेक्सपियर को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ना ही दुनिया का नक्शा उन्हें कोई फायदा पहुंचाता है। यह नक्शा एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो उनकी नहीं है। ये संसार आकर्षण से भरा है। वहाँ खूबसूरत जहाज, सूरज की गर्मी और प्यार है।
वे इन बच्चों को फुसलाते हैं, वे अपने दयनीय परिवेश में दूर भागकर उन्हें चुराने के लिए प्रलोभित होते हैं। They live in their narrow, crowded holes or layers. Their life starts with the fog of uncertainty and ends with the endless night of their death. On the heap of the waste, these small children wander with their bones peeping out of their skins, wearing spectacles of steel with mended glasses. They look like pieces of broken bottles on stones. All their time and space is spent in these dirty and foggy slums. These slums are nothing less than living hills. Actually, they are a blot on their civilized world, the world of the rich and the great. वे अपने संकीर्ण, भीड़ भरे बिलों या खोहों में रहते हैं। उनका जीवन अनिश्चितता के कोहरे से शुरू होता है और उनकी मृत्यु की अंतहीन रात के साथ समाप्त होता है। कूड़े के ढेर पर ये छोटे-छोटे बच्चे अपनी खाल से हड्डियां झुकाते फिरते हैं। स्टील का बना हुआ चश्मा पहने हुए वे पत्थरों पर टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जैसे लगते हैं। उनका सारा समय और स्थान इन गंदी और धूमिल झुग्गियों में ही व्यतीत होता है। ये झुग्गियां किसी नर्क से कम नहीं है। दरअसल वह उनकी सभ्य दुनिया, अमीरों और महान लोगों की दुनिया पर एक धब्बा है। The map of the civilized world and the slums of these unfortunate children are two entirely different worlds. Governors, inspectors, visitors, and other important persons must bridge this gap. They must peep into the world of the children living in the slums. They must make their own world the world of these slums children too. The unsuitable environment of the slum has blocked all their gates to progress. They are lying shut like catacombs, underground graves. These obstacles should be broken. सभ्य दुनिया का नक्शा और इन अभागों बच्चों की मलिन बस्तियां दो बिल्कुल अलग दुनिया है। राज्यपालों, निरीक्षकों, आगंतुकों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस अंतर को कम करना चाहिए। उन्हें झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की दुनिया में झांकना चाहिए। उन्हें अपनी दुनिया इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों की भी दुनिया बनानी होगी। मलिन बस्तियों के अनुपयुक्त वातावरण ने उनकी प्रगति के सभी द्वार बंद कर दिए गए। वह कैटाकॉम्ब यानी कि भूमिगत कब्रें की तरह बंद पड़े हैं। यह रुकावटें टूटनी चाहिए। Everything that binds them should be broken. They must be allowed to breathe in the open. They must be allowed to come out of their narrow lanes and dirty slums of the town. Let them enjoy the beauty of the green fields. Their world should extend to the sky blue waves rising over the golden sands. Let the page of the wisdom be open for them. Let their tongues express themselves freely without any check or fear. Only those people make or create history whose language have the warmth and strength of the sun. जो कुछ भी उन्हें बांधता है उसे तोड़ देना चाहिए। उन्हें खुले में सांस लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्हें शहर की संकरी गलियों और गंदी से भरे बस्तियों से बाहर आने की अनुमति देनी चाहिए। उन्हें हरे भरे खेतों की सुंदरता, जो कुछ भी उन्हें बांधता है उसे तोड़ देना चाहिए। उन्हें खुले में सांस लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उन्हें शहर की संकीर्ण गलियों और गंदी बस्तियों से बाहर आने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें हरे भरे खेतों की सुंदरता का आनंद लेने दें। उनकी दुनिया सुनहरी रेत पर उठती है, आसमानी नीली नहरों तक फैली होनी चाहिए। उनके लिए ज्ञान के पन्ने खुले रखें। उनकी जुबानों को बिना किसी नियंत्रण या डर के स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने दें। केवल वही लोग इतिहास बनाते हैं जिनकी भाषा में सूर्य की गर्मी और ताकत होती है। आई होप
कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी उन गरीब बच्चों के लिए है जो अपनी दुनिया देख नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से। उन्हें पता नहीं होता क्या करना है, क्या नहीं करना है। या तो वो इतिहास बनाते हैं या बनते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। उन्हें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना होता है, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, प्रॉपर तरीके से ना पढ़ पाते हैं, ना ही कहीं जा पाते हैं, ना ही कोई अच्छे कपड़े पहन पाते हैं, ना ही अच्छे से रह पाते हैं, ना ही अच्छे से सो पाते हैं। उनकी जो दयनीय स्थिति है बहुत ज़्यादा खराब है। तो गवर्नमेंट को और ऐसे अमीर लोगों को उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि वह भी अच्छे से घूम सके, खा सके, पी सके और अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।